anything. It is actually 360-degree preparation, your observation, your personality, your learning ability, each and everything counts a lot. Because once you are through 360-degree, then you are preparing for your interview or anything else. Because this life is also a very big interviewer. Nowadays, everybody has seen in COVID times, okay, we used to think a lot in different direction, but in last 1 year or 1.5 year, everybody thinking has been changed. तो वी से कि जब आपको लगता है कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए तो लाइफ आपके सामने सवाल चेंज कर देती है. इट इज लाइक दैट ओनली. तो प्रिपरेशन इंटरव्यू की मेरे हिसाब से इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जिसमें कि सिर्फ क्लासरूम वो नहीं है, या लोगों को लगता है कि उनको कोई कैप्सूल कोर्स दे रहे हैं या 2 घंटे बिठा के उनको डिस्कशन करेंगे. दैट ऑल कैन बिकम इमैटेरियल वंस यू आर in front of somebody and he's asking somebody something else or demanding something else. Okay, so I'll come to that on later part. So basically in interview or in anything, interview में आप hire कर रहे हो इसलिए आप थोड़ा सा keenly देखते हो. Otherwise also in our normal life, आप किसी से भी मिलते हो तो you start judging person. ठीक है, whether you have to take him or not. आप किसी के आपका कोई को ट्रैवलर को पैसेंजर है, आपके साथ बैठता है, आप बातचीत शुरू करते हो, तब भी आप उसको एसेस करना शुरू कर देते हो. तो इट इज अ बेसिकली असेसमेंट. तो इंटरव्यू में ये है कि हाँ, आपको उस कंपनी के लिए लिया जा रहा है, वहां पे एसेस किया जा रहा है बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है. बट ओवरऑल भी आपको उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिकॉज सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, वैसे भी आपको रूटीन लाइफ में अगर आप उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली योर रिलेशनशिप, योर पीआर, your trust level, everything would be great. Okay, so I can tell you those common things we see, the body language, okay, specific experience and accomplishments like work ethics, attitude, that is the most important thing, and moreover learning abilities, then your passion. And about passion we can easily say it cannot be built, it is inherent. बाकी चीजें आपको सिखा सकते हैं. देयर आर ऑलवेज टू इश्यूज, विल इश्यूज और स्किल इश्यूज. आगे जब मैं बात करूंगा आपको बताऊंगा. तो बट स्किल इश्यू यू कैन ऑलवेज डील विद, बट विल इश्यू दैट द पर्सन हिमसेल्फ हैज टू डील विद दैट विल इश्यू. तो ऑब्वियसली पैशन इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग. देन ऑफ कोर्स रिजल्ट ओरिएंटेशन, दैट शुड बी देयर. देन innovation and analytical approach. Nowadays means most of the time we need this analytical approach. Analytical approach is what? Putting things in a right way. There is only one way to do the things right, and that is the right way, and that is analytics. So most of the time your approach is that analytical or not, or you are in the storytelling mode or the generalized description mode. Like I'm sure कि जब विशाल पूछते होंगे किसी से या अपने फाइनेंस से बारे में पूछते होंगे तो ही कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट द डेटा. द वन पेजर शीट इज देयर कि ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, ये हमारे लॉस हैं, दीज आर द एक्सपेंसेस, दीज आर द बजट्स एंड ऑल. तो ही एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम द फाइनेंस गाय कि ही नीड टू टेल हिम द डेटा पार्ट, नॉट द स्टोरी पार्ट. Similar thing happen in other field also. It is not restricted to finance only, because that is directly connected with data in finance, which you see, that is visible. But there is also invisible things in sales and marketing also. There you need to connect with the data, you need to analyze the data, because most of the time people tell you these other stories. Okay, but when you see the Excel file or the data, that story is altogether different. So analytical part, that is most important thing. And apart all these means 5, 6, 7 things which I told you, I look forward in the candidate, and it depends upon the which level I am hiring for. Okay, so maybe intensity could be more or less in the different level or leadership level or managerial level or executive level, but these are the common personality traits which you need to carry or which you need to develop during course of time, and that will continue. तो इन्हीं में से आपके कुछ चीजों पे आपको ब्रश अप करके शार्प करके आप लीडरशिप में आगे निकल जाते हो, और बाकी चीजें आपके अंदर इंटैक्ट रहती हैं. बट हो सकता है कि इनिशियली आपको, जब हम फ्रंट लाइन की बात करते हैं तो हम कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा देखते हैं, एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा है, लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है नहीं है,
ये आगे भी काम आती हैं, बट इनिशियल फ्रंट लाइन लेवल पे कुछ चीजों को ज्यादा जज करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे कुछ चीजों को कम जज करते हैं, अदर चीजों को ज्यादा जज करते हैं जो रोल के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। यस विशाल। थैंक यू अभिषेक, आपने काफी डिटेल में बताया एंड आई एम श्योर कि पीपल विल रियलाइज कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज कितनी सिस्टमैटिक होती है, कितना एक्सपेक्टेशन है। दिस इज वन थिंग विच वी ऑफन फील कि स्टूडेंट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप वर्क करते हो तो ये मान के चलते कि मेहनत तो करनी ही है, आपको सीखने के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। मतलब ये तो इफ देन वाली कंडीशन होती ही नहीं है। दिस इज वन थिंग जो आई एम श्योर हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, विच यू हैव आल्सो आउटलाइन। यू हैव आल्सो आउटलाइन फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि पैशन होना चाहिए, सीखने की विल होनी चाहिए। विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज समथिंग, क्यूरोसिटी को हम लोग भी अपने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन आगे भी क्यूरोसिटी बनी रहे, ऑर्गेनाइजेशंस को उसकी जरूरत है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। प्रोफेशनल एथिक्स इज अगेन समथिंग विच इज वेरी मच, आज की डेट में हर आदमी इस पे बात करता है एंड शायद कंपनीज पहचान रही है। लोगों को समझना पड़ेगा कि केवल आप पॉलिश होकर चले गए, इससे सामने वाले को आप, यू कैन नॉट फूल पीपल अराउंड। आप पीपल, व्हेन यू हैव समबडी हु इज इंटरव्यूइंग of depth of Abhishek, and there are many such people, हर organization में अच्छे लोग होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे, you cannot fool around with them। अभिषेक, एक छोटी सी चीज, इफ यू कैन से, आज की डेट में एजुकेशन में खास के ये बार बार बात करी जाती है। पहले हम लोग बचपन में कहते थे कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, उसको हम लोग खराब मानते थे कि आप हर चीज थोड़ी थोड़ी जानते हो, किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो, आप केवल स्ट्रीट स्मार्ट हो। लेकिन आज की डेट में एजुकेशन में वापस इसको बोला जा रहा है कि आप हर चीज थोड़ी थोड़ी जानो, हर चीज को आप जानो, किसी में अगर बहुत डेप्थ नहीं भी है तो विथ इज इम्पोर्टेंट। As profession, in professional life, like as a manager or as an in charge, what would you prefer? कि कोई ऐसा हो जिसको हर चीज थोड़ी थोड़ी मालूम हो, या एक में एकदम एक्सपर्ट हो एक दो चीजों में, which कौन सी चीज प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा आगे ले जा सकती है? Okay, so this is very interesting and tricky question basically. So That was not the point. this jack of all trade, Vishal is the encyclopedia of all these literatures and all, and you must be knowing some of you might be knowing okay, this term was given by Robert Greene, okay, and William Shakespeare's time, to replace, because Shakespeare was very much popular, and that time Robert Greene has given this phrase jack of all trade, and further एक और इसके अंदर एक स्लैंग जुड़ गया कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। ओके, तो वो फिर नेगेटिव सेंस में लिया जाने लगा। बट एज आई फील कि नाउ अ डेज तो हमें थोड़ा सा दूसरा इसको फ्रेज को डिफाइन करना चाहिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ वन। ठीक है, नॉट मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। बिकॉज आपको मैं तीन चार तरीके से समझा सकता हूं कि स्किल सेट आज की डेट में जो है ना, मल्टीटास्किंग की बात की जाती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे प्रेफर पीपल हु आर एटलीस्ट हैविंग नॉलेज ऑफ वेरियस थिंग्स, वेरियस डिपार्टमेंट्स और वेरियस स्किल्स। So when you need to develop some skills, so jack of all person will be fitted most of the places, and he would be the economical person for the organization. Initial role, आपको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक जनरल फिजिशियन है, वो आपका पूरा बॉडी चेकअप करता है ना, आपको कोई भी दिक्कत है आप उसके पास जाते हो। और देयर इज ऑल्सो ENT स्पेशलिस्ट, ओके, और हार्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब आपके हिसाब से दोनों में किसकी ज्यादा वैल्यू है? तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू सी द मासेस, कि अगर मैं जा रहा हूँ, मुझे हल्का बुखार है या मुझे लगता है कि मुझे कुछ आजकल प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एक डॉक्टर से ऐसे मिलूं जो मैं बताऊं कि सर में दर्द होता है तो उसका भी कुछ ट्रीटमेंट बता दे। मैं बोलूं कि नहीं मेरी धड़कन तेज चलती है तो उसका भी कोई रीजन या उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन बता दे। मैं बोलूं पैर में दर्द रहता है तो मुझे हड्डी की कोई दवाई बता दे। ठीक है, या ऐसे डॉक्टर के पास मैं पहुंचता हूँ, वो बोलता है कि नहीं नहीं अच्छा, मैंने बताया कि ठीक है ENT स्पेशलिस्ट है, मैंने आईज दिखा दी या अपना ये कान दिखा दिए, उसके बाद मैंने बोला कि सर मेरे पैरों में बड़ा दर्द रहता है, नो नो सॉरी वी डोंट डील इनटू दिस, यू नीड टू सी अ ऑर्थो, ओके, फॉर योर पैरों का दर्द। तो हाउ डू यू फील एट दैट टाइम?
तो इसीलिए आप देखोगे कि जनरल फिजिशियन है उसकी भी उतनी डिमांड है, उसके पास पेशेंट ज्यादा है, लेकिन जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, अगर कुछ आपके दिक्कत हो गई जो कि कोई नहीं डील कर सकता, तो देयर इज एन एक्सपर्ट हु विल क्योर यू, एंड फॉर दैट यू नीड टू पे द कॉस्ट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनिशियल लेवल पे मोस्ट ऑफ द पीपल वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड के ही चलते हैं, है ना. और उसके बाद क्योंकि एक्सपर्टीज जो है ना वो कॉस्टली है, क्योंकि उसकी कभी कभार जरूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी तो वो क्रिटिकल होगी. तो यू कैन नॉट इग्नोर कि आपको वो स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, बट उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. कि सपोज मैं बात करता हूँ कि मुझे एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मेरे कंपनी में चाहिए, तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर चाहिए, यस, क्योंकि जब मुझे कैंपेनिंग करनी होगी, मार्केट के अंदर प्रेजेंस बढ़ानी होगी, बहुत सारी चीजें करनी होंगी, तो मुझे एक स्पेशलिस्ट चाहिए. तो वो लेकिन मैं महीने में, साल के अंदर मैं 1 महीने वो काम करता हूँ, एंड उसके लिए मैं 12 महीने एक इस तरह का स्पेशलिस्ट हायर करके रखता हूँ. ओके. तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से कंपनी को वो एक्सपेंसिव लग सकता है. एंड नाउ इट इज you are having many options, multiple options for outsourcing people. So you can always hire the expert from the outside organizations. You can take the means what you can say temporarily services, and you can pay the cost. So what I would say कि jack of all is equally important, and it's better कि you get mastery in one, so that कि you will be always relevant in that organization. एंड मास्टरी कैसे आती है? मास्टरी भी तभी आती है जब वन में भी आप मास्टरी करोगे, तब तब आएगी आपके अंदर, जब आपके अंदर सेंस ऑफ डेडिकेशन हो, कन्विक्शन हो, आप पैशनेट हो कि आपको आगे बढ़ना है. तो आप अगर एक चीज में मास्टरी कर सकते हैं तो डोर्स आर ऑलवेज ओपन. यू कैन बी मास्टर ऑफ ऑल ऑल्सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो जैसा भी डिमांड रहती है या जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो. So you have to be jack of all trade, and then you have to be master of one at least. So this is my summation, Vishal, in this. That was a very innovative way of presenting it. Jack of all and master of one. That is, लेकिन it Yeah. makes sense. It definitely makes sense कि आपको एक में मास्टर होना चाहिए और फिर हर चीज थोड़ी थोड़ी मालूम होनी चाहिए. अभिषेक, if you remember last time हम लोग का जब डिस्कशन हुआ तो we were discussing कि कोविड पीरियड में one cannot be an island. आपको हर चीज में in fact you were the one who told us कि you cannot say कि ये मेरा काम नहीं है या ये मेरा प्रोफाइल नहीं है. अब आपको हर काम के लिए तैयार रहना पड़ेगा. That is one thing. तो डू यू फील एट योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एक साल में क्या ये और सीमेंट हुआ है ये चीज कि अब आपको सारे काम प्रोफाइल से बहुत मतलब नहीं है, आपको हर काम करना पड़ेगा? क्या चेंजेस आए हैं? कोविड का इम्पैक्ट क्या हो रहा है? वो अभी हम लोग फर्स्ट वेव की ही एनालिसिस कर रहे हैं. सेकंड वेव के बाद तो अभी मार्केट खुलेगी. वी डोंट इवन नो कि कितना इम्पैक्ट जाएगा. आपके हिसाब से प्रोफेशनल लाइफ पे कोविड का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ऑलरेडी कोविड का प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ चुका है, और पड़ चुका है इन द सेंस के इट ऑलरेडी हैपेंड, वेदर यू आर अवेक और नॉट. इट्स इंपॉर्टेंट कि यू आर अवेक और नॉट. इट ऑलरेडी हैपेंड. सेकेंडली, अभी भी लोग जैसे बात करते हैं कि पोस्ट कोविड एरा, ओके, या कुछ दिनों बाद मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स हैव अनाउंस्ड द लॉकडाउन, एंड एवरीबडी इज वेटिंग कि 24 को खुल जाएगा, कोई बोल रहा है 31 को खुल जाएगा, somebody is saying कि एक्सटेंड होगा. तो अगर अभी भी आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, पहली चीज कि देयर वुड बी अ पोस्ट कोविड एरा काइंड ऑफ अ थिंग, तो यू आर रॉन्ग. बिकॉज आप देखिए, जब कोई चीज बहुत ज्यादा उम्मीदों में लेके चलते हैं ना, तो आप कभी भी क्राइसिस मैनेजमेंट के प्लान नहीं बना पाते. आप ये मान के चलिए कि ये कोविड एरा जो है अब आपके साथ हो गया. You need to plan all your means tools, your strategies, your working culture, everything around it. बिकॉज आप मुझे एक बात बताइए, हम कोविड की बात कर रहे थे, फर्स्ट म्यूटेंट के बाद सेकंड म्यूटेंट की बात होने लगी, थर्ड वेव की बात होने लगी, अब होने लगा कि फंगस, ब्लैक फंगस आ रहा है. तो हाउ कैन यू से कि नेक्स्ट ईयर कोई ऐसी नई बीमारी नहीं आएगी जो इस तरह पैंडेमिक बन जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए? हाउ मच श्योर यू आर अबाउट इट? नोबडी. तो बेटर कि हम कोविड नाम को जो है ना एक ऐसी चीज में तब्दील कर दें कि यस, इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग और इट्स अ काइंड ऑफ डिस्गाइज, जो कि कभी कभार हमारे साथ आते रहेंगे, एंड देयर वुड नॉट बी एनी पोस्ट कोविड और हैप्पी हैप्पी काइंड ऑफ अ सिचुएशन आफ्टर सम टाइम, व्हेन सब कुछ वो मतलब संगीत बजेगा, झूले हिलेंगे, आप सारे लोग गाने गाएंगे, इस तरह का.
ये सब कुछ नहीं, ये ठीक है, आप इसी के बीच में उसका रास्ता निकाल लेंगे, सब कुछ होगा, बट यू कैन नॉट वेट एंड वॉच फॉर दैट गुडी गुडी सिनेरियो। तो मेरा ये कहना है कि कोविड टाइम्स में भी जब हम बात करते हैं, तो अगर आप मैकेंजी का नया रिपोर्ट पढ़ें, ग्लोबल रिपोर्ट, तो उसमें बोला गया कि इस कोविड टाइम में जो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मींस ब्लेसिंग इन डिसगाइज जो है आपके पास, हाउ टू लिवरेज कोविड टाइम्स, तो वो सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि यू कैन बिल्ड योर स्किल सेट, यू कैन improve योर स्किल सेट। आप लॉट ऑफ थिंग्स देयर आर विच यू कैन वर्क अपॉन। आप अपने स्किल्स के ऊपर बात कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, अपने लोगों से बातचीत कर सकते हो, अपने टैलेंट को ब्रश कर सकते हो, है ना, अपनी थिंकिंग को ब्रश कर सकते हो। और जो कोविड टाइम में एक सबसे बड़ी चीज आई है ना, वो है सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है, जैसे हम पहले भी बात करते थे कि दिस इज अ ट्रेड जिसको कि चाहिए, आप मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर दे लाइक इन देयर एम्प्लॉइज द सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि ठीक है साहब, बिकॉज वी आर नॉट गवर्नमेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना, जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपने फाइल रख दी, जब उसका नंबर आएगा तब चलेगा ना। सेंस ऑफ अर्जेंसी, देयर इज अ टैट फॉर एवरीथिंग, देयर इज अ डिफाइंड टैट एंड यू नीड टू परफॉर्म इन दैट टैट। अगर आप नहीं परफॉर्म करते, देन देयर इज ऑलवेज अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, देयर इज समबडी एल्स हु इज गोइंग टू बी रिप्लेस। तो इन इस टाइम को आपको कैसे यूज करना चाहिए अपने इन सारी चीजों को ब्रशअप करने के लिए। कोविड का सेंस ऑफ अर्जेंसी को आप अगर अपने वर्क फोर्स के अंदर या अपने वर्किंग में आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ हैप्पी हैप्पी सिचुएशन फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। सेकंड थिंग, कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि बजाय कि बाहरी टैलेंट को आप ला के उनको कुछ सिखाएं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने यहाँ के जो इन हाउस लोग हैं आपके पास ऑलरेडी, उनके टैलेंट बिल्डिंग पे आप टाइम लगाएं, उनकी आईडीपीज, इंटरनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग, कोचिंग सेशंस, बहुत सारी चीजें आप जो भी कर सकते हैं उनके ऊपर अपने को करना चाहिए। तो आपके जो स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट होंगी या बाकी सारी चीजें होंगी, वो अकॉर्डिंगली हो सकती हैं। ओके। एंड वन थिंग जो है आपका, जैसे मैं बात करूं, अगर मैं अपने आप को एग्जांपल देता हूं, जब कोविड टाइम आया लास्ट ईयर लॉकडाउन में, तो देन आई वाज थिंकिंग कि क्या किया जा सकता है। नाउ वी आर नॉट मीटिंग पीपल वन टू वन, तो हाउ माय सेल्स पीपल विल डू द कॉल्स, तो बिकॉज दे आर यूज्ड टू ऑफ मीटिंग वन टू वन। तो टेलीफोनिक स्किल्स शायद मैंने, जब मैं एग्जीक्यूटिव होता था तब मैंने पढ़ी थी कहीं, ठीक है। देन आई एक्सप्लोर्ड ऑल दी वीडियोस, ऑल दी थिंग्स, ऑल दी टेलीफोनिक स्किल्स, video conferencing skills. I have explored all the things and I started giving training by myself to my people कि आपको इनमें बेटर होना चाहिए। when you are not visible to सामने वाला आदमी, then you have to impress। तो कैसे आप करोगे? तो whether you are having those skills or not, those etiquettes or not, so we have started classes on those telephoning skills, video conferencing skills, how to behave, and साथ में stress management, because you are not used to it, we are not used to it कि आपको एक जगह बिठा के दिन भर स्क्रीन पे सारी बातचीत करना है, सारा कुछ करना है। then you have to find out the ways, क्या आप अपने मिस टाइम काटने के लिए आप कैसे अपने आप को री एनर्जाइज कर सकते हो, कैसे आप लेजर कर सकते हो, कैसे आप घूम टहल सकते हो, कुछ भी ऐसी चीजें वो आपको प्लान करनी चाहिए अपने इसी स्केड्यूल के अंदर, जो कि आपको एनर्जाइज करे और वापस आपको इस मोड पे लेके आए। तो जो विशाल आपका सवाल था कि एवरीबडी नाउ, कि एक आदमी 10 लोगों का काम कर सकते हैं, विद गॉड्स ग्रेस यू आर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी। लाइक जो बाउंड्रीज थी ना, वो बहुत छोटी हो गई हैं नाउ डेज। ये ऑप्शंस पहले भी थे पर हमने एक्सप्लोर नहीं किए थे, बट आज ये बाउंड्रीज आप देखिए ना, कि आप लोग इतने दूर बैठे हो, मैं इतने दूर बैठा हूँ, एक साथ 100 पीपल आर कनेक्टेड। when it used to happen, it used to happen once in a year or twice in a year, we used to have conferences and speaker is there और वो बोल रहा है, उसके बाद आप सुन रहे हो, उसके बाद इम्प्लीमेंट हो रहा है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, उसके बाद उसकी नेक्स्ट फॉलो अप मीटिंग आफ्टर 6 months। तो नाउ यू आर हैविंग चांस कि अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, जिसके भी साथ आप चाहें, वो बाउंड्रीज नहीं है, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। एवरीबडी इज इन योर रीच 24/7 with zero cost। Companies also have saved the cost on this, and you have also saved your stress। आपका हेल्थ, कि आपको ट्रेवल करना पड़ता था 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जहां जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं बाहर का, ये सारी चीजें, those all risk have been mitigated। तो नाउ जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, then we also need to think, because there is a simple thing, simple गणित है कि we all
आर द बिजनेस पार्टनर, जब आप इस ढंग से सोचोगे ना कि यू आर नॉट एन एम्प्लॉई और आई एम नॉट एन एम्प्लॉई, तो हमारे जब प्रोमोटर्स के साथ डिस्कशन होता है ना, तो वी ऑलवेज थिंक कि हमारा लास्ट माइल तक भी जो बंदा है ना, ही शुड फील ही इज अ बिजनेस पार्टनर। कोई 1 पैसे का पार्टनर हो सकता है, कोई 5 पैसे का, कोई 10 पैसे का, परसेंटेज आर डिफरेंट एज पर इज रोल। बट once you are a business partner and you start thinking on these lines कि you are a business partner, तो business partner क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब वो बिजनेस चलेगा, ग्रो करेगा, तभी बिजनेस पार्टनर को भी उसका जो परसेंटेज है उसके एवज में उसको रिटर्न मिलेगा। तो आप जब तक एम्प्लॉय सेगमेंट में रहेंगे तब तक आप बचते रहेंगे, बचने की कोशिश करते हैं, है ना? कि जब तक मेरे से कहा नहीं जाए यार तब तक तो मैं नहीं करूंगा। कौन कह रहा है यार? अब किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है? एवरीबडी सो स्मार्ट, सो फास्ट। तो मल्टीटास्किंग, बिजनेस पार्टनर, ये आपको अपने दिमाग में लाना ही लाना पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हो सकता है इधर भटक के उधर चले जाएं, उधर से तीसरी जगह चले जाएं, घूम फिर के कुछ कुछ हाथ नहीं आता। अल्टीमेटली योर बेसिक्स एंड फंडामेंटल शुड बी क्लियर। if you are a business partner and if you are contributing towards the growth of the company, definitely you will be getting benefited out of that. So this is my take, Vishal. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिरर, जैसा मैं सोचता हूँ एग्जैक्टली वही चीज। एंड इट इज इंटरेस्टिंग, यू हैव ब्रॉट इन फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो शायद हमारी कंपनी में भी, हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी जब हम लोग टॉप एंड पे बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कि योर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव your own selection criteria and then a better maybe monitoring, कॉलेज में मॉनिटरिंग के लेवल्स की लिमिटेशन होती है। हम लोग एकेडमिक हैं, मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करते हैं, लेकिन दिस प्रॉब्लम वी ऑल फेस कि जो बोला, इफ आई कैन ट्रांसलेट इट इनटू 2 different ways। फर्स्टली कि लोग आर, पीपल आर ऑलवेज वेटिंग कि मुझे काम बताओगे तो काम करूंगा। तो दिस इज समथिंग विच यू ब्रॉट आउट कि बताने का तो समय ही नहीं है और किसी को इंतजार भी नहीं करना चाहिए। इफ यू फील यू आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन यू शुड डू दैट। Secondly, Abhishek, there is one more point which I feel, this would be my last question. इसके बाद I expect others to take up and media से related जो भी सवाल है आपको bombard करें और आप जितना बच पाओ बचो और जवाब दो। लेकिन this is one part जो लोगों के अंदर जो सीखने की शक्ति है, इच्छा शक्ति है। This is first thing which you also started, will to learn. Now, will to learn is not a very linear path. It has multiple parameters involved कि आपके अंदर क्यूरोसिटी हो सीखने की, आप देन अगेन आपके अंदर, जैसा कि यू सेड कि बेसिक क्लियर्स हो, अगर बेसिक नहीं क्लियर होंगे तो यू कैन नॉट बिल्ड अपॉन दैट। नाउ कमिंग टू माय क्वेश्चन, like the biggest challenge which I feel as an head of organization is कि लोग सीखने से डरते हैं। अगर सीख लें तो उसको सीखने से, इम्प्लीमेंट करने से, कुछ नया करने से लोग डरते हैं। अब आई ऑफन फील कि दिस इज अ फेल्यूर एज अ मैनेजमेंट कि मैं लोगों को कुछ नया सिखा ना पाऊं या लोग सीखने से डरे। एंड सेकेंडली जो बोला कि सीखने से डरने के साथ साथ लोग बहुत इंतजार करते हैं कि मुझे जब बोलोगे तभी सीखेंगे। सो ये क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होती है या लाइक ये होती, दो यू हैव ऑलरेडी ब्रॉट आउट द आंसर टू सम लेवल ऑन दिस थिंग, लेकिन आई लाइक क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं। एंड क्या ये नई जनरेशन से कुछ रिलेटेड है? लाइक व्हाट डू यू फील? आपके पास कोई नया आता है तो आपको लगता है पुराने वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन ये तो शायद कंटिन्यूअस है, पहले भी लोग यही बोलते आए होंगे। सो दीज आर टू थिंग्स, शायद मैं आपसे रिपीट करने को लिए बोल रहा हूँ, लेकिन माय पॉइंट इज फर्स्टली कि लोग नया सीखने से डरे नहीं, इसका क्या तरीका है? एंड दूसरा, लोग सीखने के लिए अपनी जरूरत समझे, वो समझे कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ चाहिए तो फिर उनको सीखना चाहिए। ये दो फैक्टर्स में कैन यू ब्रिंग आउट कि आप, डू यू आल्सो फेस दिस चैलेंज एंड हाउ डू यू ट्राई टू ओवरकम दिस चैलेंज? Yeah, Vishal. Actually, there are two things. First of all, means I can divide into two parts. Okay. There are people, those who are basically new recruits, young. Okay. So we have recruited them. So then definitely it's our responsibility to make them grow after their shortcomings, because we are human being. Everybody is having some or other means things which they are lacking. तो बट व्हाट आई फील के अभी के जनरेशन में जो एक चीज देखने में आती है, वो पहली चीज ये है ना कि पेशेंस, जैसे आपने बोला कि पेशेंस का थोड़ा सा अभाव है।
क्यों है, मैंने थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश की, तो पीपल आर एक्टिव लिसनर की जो एक भूमिका है ना, तो दैट इज लैकिंग वेरी मच नाउ अट इज. पीपल आर लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड, दे आर नॉट लिसनिंग टू अंडरस्टैंड. तो एक्टिव लिसनर की जब हम बात करते हैं, देन आपको पूरा चीज समझनी पड़ेगी कि मीन्स जो भी आप लोग कल के दिन जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं है और आप सिर्फ सिंपल ये सोचते हैं कि बस आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपने सुन लिया, 2 लाइन सुनी, 3 लाइन सुनी, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करने लगते हैं बिना चीज को समझे, तो डेफिनेटली वो पेशेंस में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है और वो आपके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होता है. दूसरी चीज जो मैं देखता हूं कि एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. शॉर्ट टर्म थिंकिंग को मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि आप लोगों ने सबने सुना होगा, अगर आप में से कुछ लोग स्टॉक्स में या इसमें ट्रेडिंग करते होंगे या शुरू किया होगा, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स. ओके, वन इज इंट्राडे एंड सेकेंड इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अब आप कभी भी किसी से पूछ के देखेंगे, जितने भी लोग हैं अगर इस फाइनेंस सेक्टर में या आपके जानने वालों होंगे, आप उनसे सवाल पूछिएगा तो वो बताएंगे आपको कि नहीं, मैंने तो रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे, या 10 साल पहले मैंने 10 पर्टिकुलर अच्छी कंपनीज के शेयर्स खरीदे थे और उनको रख दिया, और आज की डेट में दे आर मल्टीप्लाइड 300%, 400% रिटर्न के साथ. सपोज somebody has purchased at the price of 5 lakhs rupees, nowadays it is 25 lakhs rupees or so. And other part is intraday trading, कि आप उसी दिन सोच रहे हो कि मैं इसमें करूंगा और उस दिन शाम को ही आपको कुछ उसमें से पैसा चाहिए. तो जब आप बात करोगे, कई किसी से भी पूछ के देखना आप, कितने आपको सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर मिलते हैं कि जो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट कमाना, बट इट ऑलवेज कम्स विद लॉस. And most of the time, because you are not having patience, so loss making probability would be much much more. So once you are through all these technical things, if I am going to do intraday trading, then definitely I have to be equipped with the all terminologies, technicalities of the share market. Okay, I have to be that risk appetite, I have to be that much of capital. Then only in the long run or in the month end, I would be able to say that yes, I have earned a lot of money in the intraday trading. So it is like that. Okay, these all things are which you are doing. Either it is intraday, short term thinking, कि आपको लग रहा है नहीं यार, आज को मेरे को क्या मिला, इससे आज मुझे डांट मिली, या महीने के अंत में मुझे क्या मिला, थोड़ा सा इंसेंटिव मिला, या साल के अंत में, या नहीं भी मिला, मुझे 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिला. ओके, तो वो हो सकता है इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप बिजनेस पार्टनर हैं, आपने अपने बिजनेस के लिए जो कंट्रीब्यूट किया, हो सकता है आपने अच्छा किया और बाकियों ने नहीं किया. ओके, तो एंड आपके आपके अच्छा करने की बात है ना, आप दूसरों का तो नहीं ले सकते जिम्मेदारी, लेकिन डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ कोहेसिव एनवायरनमेंट. अगर हम सब अपना अपना काम अच्छे से करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का काम तो अच्छे से हो जाएगा. इसमें मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी. कि कई बार होता ये है कि लगता है ना कि यार मेरे हिस्से का काम है, या मैं कोई भी कर लेगा इस टाइप से. तो एक गुरुद्वारे के अंदर एक तालाब खोदा गया. तो जो गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि यार ऐसा है कि पहली बार तालाब खोदा है, तो एक काम करते हैं, इसको गुरु की पहली बार जो है ना, इसमें हम दूध से भरते हैं इसको पूरे को. तो इसमें कुछ नहीं करना, इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ, एक काम करते हैं कि कल सुबह इसको 4 बजे अपन दूध से भरेंगे, हर आदमी अपने घर से एक एक लोटा दूध लेके आएगा और इसमें डालेगा. और सबने कहा बहुत बढ़िया रहेगा गुरुजी, सबने हाँ में हाँ मिलाया, सब खुश होकर घर चले गए. उन्होंने कहा शाम सुबह 4 बजे मिलते हैं. तो सुबह 4 बजे मिले और मीन्स सबने डालना शुरू किया. 5 बजे सूरज निकल आया, तो देखा भाई. तो आपको क्या लगता है वो किससे भरा हुआ होगा? कोई एक मुझे जवाब दे जिसका पानी से भर गया. कोई और जवाब देगा इसमें? You will unmute yourself, like any of you who are interested. बताइए, anyone. दीपिका, आपको क्या लगा किससे भरा? या सर यू कैन टेल. रमेश जी आपका म्यूट है शायद, आप कुछ बोल सर रहे हैं. आपका म्यूट है, आपका. He's our director at Aligarh. अभी भी म्यूट है सर. Can you hear me now? Yeah. Yes. Mr. Srivastava, good afternoon. Good afternoon, sir.
I heard you before also, and Okay. your talk was valuable. But I have got a complaint against all the journalists Yeah. that at this time of COVID, they have not been able to influence students to attend online classes. Okay. There had not been any valuable and worthwhile article in newspapers. Why not? Dainik Bhaskar is, of course, a very famous paper, but most of the papers have only given information about that, yes, online classes are going on. But they have not given such information to the parents and students that now this has become probably that for quite some time that we'll be using online classes. There had been no effort from the journalists to inspire students to attend the classes more and more on online. I would call and I would blame the entire this faculty of journalists that they have been unaware of it. They have been only in the line of the government, and government has not much bothered about education. Okay. I'll Abhishek, I'll just add very quickly. See, this is specific. After this. हाँ, यूपी की एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे ऑनलाइन बंद कर दिया गया था क्लासेस का, तो सर का Yeah, I am aware. अच्छा, I am aware, and I'll Let him definitely speak on answer your behalf of question. journalism. That is then this. Yes, definitely. I'll answer entire question of yours. Okay, and tell you the truth and facts as well. Okay, so my question was कि किससे भरा था? तो किसी ने बताया नहीं. I thought कि रमेश जी शायद वो तो उसके बारे में जवाब देने वाले हैं. But he raised another question. तालाब पानी से भर गया था. तालाब पानी से, एग्जैक्टली द सेम थिंग. आप सबको भी आंसर मालूम होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल. और क्यों भर गया था, इसका भी रीजन बिल्कुल क्लियर है. क्योंकि हर आदमी ने सोचा था यार हर आदमी तो दूध लेके आ रहा है, अगर मैं एक लोटा पानी मिला दूंगा तो हार्डली मैटर्स, है ना. इतने दूध में दूध वाले भी पानी मिलाते हैं, अपन देखते ही है ना. तो मेरा एक लोटा पानी मिल जाएगा तो क्या फर्क. और दुर्भाग्य से हुआ ये कि सभी ने वही सोच लिया कि मैं एक लोटा पानी मिला दूंगा. तो इसी तरह से होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं यार कि हमने नहीं किया, दूसरा कर लेगा, दूसरा सोचता है तीसरा कर लेगा. और ओवरऑल जब हम ब्लेम करने की बात करते हैं तो फिर ये आता है कि यार मैंने तो अपने हिस्से का काम कर लिया था. तो वो कोहेसिवनेस ऑटोमेटिकली बनती है जब हर आदमी अपना काम करना शुरू कर देता है, तो डेफिनेटली वो कोहेसिवनेस बन जाती है. तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था इसमें कि क्यों ये चीज आती है. देखिए विशाल, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस एंड प्रैक्टिकल थिंग. इट विल बी ऑलवेज देयर. क्योंकि जो युवा जनरेशन होती है ना, वो भविष्य को वर्तमान में खींच के लाना चाहती है, और जो ओल्डर जनरेशन होती है वो पास्ट को प्रेजेंट में देखना चाहती है, कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है. तो इसीलिए वर्तमान जो काल होता है ना, प्रेजेंट टाइम, ये हमेशा सुधारों का काल होता है. इसीलिए सारे एक्सपेरिमेंट, सारे सुधार वर्तमान काल में ही होते हैं, क्योंकि ये हमेशा खिंचाव में रहता है. ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि वर्तमान स्ट्रेस्ड ना हो. इट विल ऑलवेज बी. ये प्रकृति का नियम है. लेकिन अब उसमें हमें अपने लिए कंपैटिबिलिटी कहाँ पे बिठानी है, तो वो जैसे मैंने आपको चीजें बताया कि पेशेंस वाली चीज, शॉर्ट टर्म थिंकिंग ना करें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चीजों को सोचना शुरू करें, ठहराव लाएं. जैसे क्योंकि लाइफ केबीसी नहीं है कि जिसमें आपको हमेशा 4 ऑब्जेक्टिव आंसर मिलेंगे, आपको एक सिलेक्ट करना है. दिस इज सब्जेक्टिव ऑल्सो कि आप इफ एवरी टाइम यू आर एक्सपेक्टिंग कि यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस फॉर एवरी क्वेश्चन, नो, देयर माइट नॉट बी. आपके पास बहुत सारा सब्जेक्टिव कभी कभी आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये केबीसी नहीं है और ना ही ये इंट्राडे ट्रेडिंग है. दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. आपको अगर प्रॉफिट में रहना है तो आप बात करके देखना. अगर आपको कोई भी ऐसा मिले जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था और वो प्रॉफिट में नहीं है, तो आप मुझे बताना. तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि शॉर्ट टर्म चीजों को ना सोच के, और एक जो सोशल मीडिया है ना, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, दिस आल्सो गिविंग अस अ इम्पेशेंट फीलिंग समवेयर. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं पे बैठ के ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं. पहले क्या होता था कि ट्रेन का इंतजार कर रहे होते थे, है ना, बोर्ड पे लिखा है कि ट्रेन इज रनिंग 2 आवर्स लेट. अब आपके पास ऐप है, आपने खोल लिया उसमें, है ना, IRCTC की साइट खोल लिया आपने, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम खोल लिया, एंड लाइव ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन शुरू कर दिया आपने. अब आप मुझे बताइए कि विल दैट ट्रैकिंग हेल्प यू टू गेट दैट ट्रेन बिफोर टाइम? नो.
but you will spend a lot of time, you will be getting stressed over a period of time. आप बार बार देखोगे उसे क्लिक करके कि अब कहाँ पहुंची, अब कहाँ पहुंची। ये उसी तरह हमें मालूम है कि चावल को उबलने में सपोज 15 मिनट्स लगता है, आप उसके अंदर एक कैमरा लगा दो, है ना, एंड आप यू स्टार्ट चेकिंग आफ्टर 2 मिनट्स ऑन द कैमरा, तो विल इट चेंज द बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टाइम ऑफ द दैट राइस? नो, वो 15 मिनट में ही पकेगा। लेकिन उस 15 मिनट के बीच का आप एक एक 2-2 मिनट, अब इतना पक गया है, अब इतना रह गया है, अब इतना पक गया, अब इतना रह गया, ये ट्रैक करके करोगे क्या आप? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेट इट गो। उस पे जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। Mr. Abhishek, you are Yeah. drifting away the question. You are drifting away from the question. I've asked you that. Actually, sir, you missed out that No, time. let him reply. We were Let him reply. Arre, Let that's him okay, reply. but we were discussing on this Let thing. him reply. We were discussing on this particular part, and that is what he was doing. We were discussing. Anyways, you continue. Huh? Okay. So मेरा जो कहना था कि excessive use of social media, that will not help you. इसके लिए there should be a timeline, कि आप एक टाइमलाइन बनाएं कि आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में एक 2 घंटे इस पे स्पेंड करना है, नॉट द एंटायर डे और थ्रू आउट द डे। यू कैन नॉट स्पेंड बिकॉज इट इज किलिंग योर प्रोडक्टिविटी। आपको ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देता है, आपकी थिंकिंग को डाइवर्ट कर देता है। आप कुछ चीज सोच रहे होते हो, आप कहीं पहुंच जाते हो। तो दीज आर द 4-5 थिंग्स व्हिच आई फील, विशाल। बट एज आई सेड कि देयर आर ऑलवेज 2 टाइप ऑफ पीपल, जो कि करना चाहते हैं और जो चीजों को दिमाग में रखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। बट देयर आर अनदर काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि हम कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि आगे भी तो जाना है। तो वही लोग आगे जाएंगे जो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और बाकी लोग आपने भी देखा है कि आपके साथ के बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ उसमें से ऊपर निकल जाते हैं। तो वही ऊपर निकलते हैं जो समय के साथ अपने को चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं। इट इज जस्ट लाइक अपग्रेडिंग योर ऐप, कि अगर उसमें कोई पैच आया है, कोई उसमें नया सॉफ्टवेयर आया है, कोई नया फीचर आया है, यू हैव टू अपडेट दैट। और उसको आप अपडेट नहीं करोगे तो यू बिकम ऑब्सोलीट। So this is my take. So shall I answer your director's question first? You have not answered my question, or I have not been able to put a proper. I have said at this time of crisis. Can you hear me? Sir, I have at this time of crisis, one particular thing I have asked you. Yes. I am giving you the answer. No, you have not given me the answer. No, I am giving you the right away. No, let me finish. Why right I will elaborate that why I want. I am very much concerned because I am in a school and a college also. And what I feel practically, I feel that the journalists can do a lot about it. That sometime during this time, at the time of crisis, I don't say that you keep on talking about it continuously. Your paper, you fill your papers with the details of that. Only at this time, because online classes and online study has started more at this time. So it was the duty of the papers writing appropriate articles, very illuminating articles to put into the brain of the parents and as well as to the students that online classes are more important, and in future also such eventualities can also come in future. And even now that universities are telling that multiple courses are running about it. What my experience is, students are not willing to attend the classes online. That is our problem. As you are a state yourself, journalism is a state yourself, can you do something? Because this is one of the greatest work to for the students, what they will do to make a new India, all these things. It is important that they should devote to the studies. And this time, online study is the most important. The papers have not really written substantially the articles which attract the attention of the students. Can you do something? If not, you have not done it. Can you do tomorrow? Can you talk to your other journalists that we should do something about it? Okay, sir. So shall I answer your question now? Yes, please. Okay. So you have raised 2 points. First of all, students, they are not attending the online classes, and newspaper or journalists, they are not doing their bit. Okay. Yes. So sir, first of all, let me tell you that only journalist or newspaper cannot bear this responsibility alone.
We have to Okay. collectively come together and do Correct. this. Let me answer your question. Okay, so as far as Bhaskar is concerned, I am telling you one week before this incident in the similar line. So why this situation came? First of all, let's discuss that situation. Because once that COVID time was declared, and before 2-3 months, everybody was thinking the things have been normalized. Now classes will be started, offline classes will be started, everything will be started, and things will be going fine and in a smoother way like earlier. Secondly, a lot of infrastructure and investment have been made by the colleges, institutes, and the schools as well on the offline studies. Earlier, last 1 year, there was a mixed kind of a reaction. Like coaching institutes, universities, colleges, they were thinking they have invested a lot of money in this infrastructure, and that is a profitable module. Always, offline module is a profitable module first. Secondly, we were used to of it. Everybody was used to of it, and even today we know better. That this is a substitute. Yes, this is a additional tool, but it cannot compensate the offline studies. So there was a big debate going on between the schools, colleges, and other these kind of educational establishments, whether offline study would be better or online study would be better. One thing. Another hand, when before 1 month, when this second wave came out, and everybody felt now okay, COVID has not gone anywhere. It is there in the society, and we have to deal with this. So earlier, what was happening? There was a mixed kind of pressure from society. Then that fees dispute that has come out in the society, whether you have to pay 70% or 60% or 50%. Parents were demanding, schools or colleges were saying 100% we need fees. Then everybody has gone to court and they declared 70% you can charge. Now Supreme Court has declared 100% you need to pay. All these things happened, and what happened in reality, in reality it happened that the trust between parents and the teachers or the faculty, that has been completely broken out nowadays. Now only media, yes, we should do that, we should educate people that online studies, they are equally important, and this is just like a power bank. If it cannot be a substitute for a main charger where you are charging electricity, आप चार्जिंग पे लगाते हो, बट पावर बैंक आपके पास होता है ना कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली तो हमारा पावर बैंक काम करेगा, एंड यू ऑलवेज कैरी द पावर बैंक. So you need to carry online education just like a power bank, if not like a main charger. So this all thing have started in second wave. Now everybody is thinking on the same line. Even those institutes, those colleges, universities who were thinking they have spent a lot of money or invested a huge investment in their big infrastructure. Now they need to give the online education because online education was economical. It was cheaper than your offline module fees. So that dilemma was there in the society. Second thing, nowadays, as far as schools are concerned, so what I'm telling you, what I have done in Rajasthan. So before 1 week, we have conducted a virtual samvad between the parents, the school owners, college owners, some of the students through editorial, and we have taken all the views from the schools. So schools were saying कि आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस वी आर डूइंग बिकॉज हमें फीस वसूलना, ये उनको मींस पेरेंट्स को ऐसा लगता है, दिस इज द परसेप्शन कि ऑनलाइन क्लास तो आप इसलिए चला रहे हो क्योंकि आपको फीस वसूलना है. लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पे लोग आए तो पेरेंट्स को बताया गया कि एक ऑनलाइन क्लास के लिए टीचर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो सवेरे से शाम तक कितनी तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है. इवन सम ऑफ द टीचर्स दे हैव एक्सप्रेस्ड कि उन्होंने पहले तो वो 8 से 2 तक के स्कूल में उनका छुट्टी हो जाता था, 3 बजे आ जाते थे घर, उसके बाद नेक्स्ट डे में ही उनको काम करना पड़ता था स्कूल का. बट इन ऑनलाइन क्लास दे आर एंगेज्ड सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग. So this is the pain they are taking. So when they came together, then students, of course, we cannot leave students. आप उनको victim नहीं बना सकते. They are not used to of it. Please, आप आज वो इस सिस्टम में आए हैं. अभी तक हम बच्चों से बात करते हैं, हम उनसे तो पूछ ही नहीं रहे. आपने बोला कि आपको स्कूल जाना है, आप स्कूल जाते थे. आपने बोला नहीं आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ना है, अब वो उसके सामने बैठ के पढ़ रहे हैं. But you cannot victimize them. They are also not used to of it.
कि आपने बोला और आप कोई फरमान निकाल दें और बच्चे आगे अटेंड करने लगें. It will be coming through their own. And third thing, as far as parent is concerned, school expressed कि आप अब कस्टोडियन हैं अपने बच्चे के. जब वो स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, then school और कॉलेज is custodian. Now when child is at home, तो उसमें आप कस्टोडियन हैं. Then we have defined so many do's and don'ts for this. हमने उनको डेमोज दिखाए कि क्या डूज हैं ऑनलाइन एजुकेशन में और क्या डोंट्स हैं, कि बच्चे को किन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए. देन स्टूडेंट्स आल्सो एक्सप्रेस देयर क्वेरीज और कंसर्न कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता. देन वी सजेस्टेड कि जस्ट लाइक अ जिम जहाँ पे सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, बट देयर इज अ पर्सनल ट्रेनर. तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट पर्सनल ट्रेनिंग क्लासेस? यू कैन चार्ज एडिशनल, कि आप 1 घंटे का जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है उनसे आप बात करें और उनको आप ट्रेनिंग दें या आप उनको समझाएं, सो दैट उसको ये चीज जो है, हेजिटेशन जो है 1-to-1 इंटरेक्शन में निकल जाए और उसको चीजें समझ में आ जाए. तो सर, इट इज नॉट लाइक दैट कि वी आर नॉट डूइंग थिंग्स. वी आर डूइंग थिंग्स, बट कलेक्टिवली everybody has to come on the same platform. We have to raise or address the concern of everybody. Then only it can become a good tool, because everybody knows now कि जिसके पास नहीं भी था सबने ऑनलाइन अपना इक्विपमेंट स्टार्ट कर दिया है. बट सबके मन में कहीं ना कहीं है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस. तो इन फ्यूचर जब भी चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, देन वी विल स्टार्ट अगेन. आप किसी बच्चे से पूछ के देखिए, किसी से भी यंगस्टर से पूछ के देखिए कि उसको क्या लगता है कि वो इस ऑनलाइन को कंटिन्यू करना चाहता है या वो वापस कॉलेज में जाना चाहता है. डेफिनेटली वी विल गेट द सेकंड आंसर इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो हमें तो ये समझाना है कि दिस इज ओनली कंटिजेंसी प्लान, और आपको कंटिजेंसी के टाइम तक इसको अडॉप्ट करना है और इसमें आगे बढ़ना है. तो वी I cannot say about the UP, but I can always contact the local newspaper, and you can tell them idea. Even I can call them and I can tell them the idea, where on the same platform everybody can come and share their views, and we can publish it in next day's newspaper, so that that bridge or breaking the ice can happen, because there is a trust level nowadays. वो हमारे सिर्फ छापने से नहीं आएगा कि हमने भी छाप दिया कि अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ना शुरू करें और बच्चे पढ़ने लगेंगे. Until or unless that problem, that concern would not be handled in the society. So collectively we have to do this, and we are doing our bit, definitely. Sir, shall I answer your question? Have I answered your question? You have replied my question. You said collectively. We are doing our job. I only wanted that because you got a very strong media, that you are a very strong state. You are better than anyone else. As far as the newspapers are concerned, they can put a better impact upon people. We are doing that. Collectively, we are doing every day. We are one-to-one, we are talking to the student. But they need something, because people have a lot of faith on newspapers. If they are the advising, a proper advice is coming, they make a column for that, and a particular column for daily during this time, during this COVID time, not permanently. So even what happens, the parents believe more on newspapers than anyone else telling. So that job you can do. We are doing, of course, collectively we are doing. Parents are also doing. We are also doing that. So that was my question only. Anyway, thank you very much. Yeah, thank you. Yeah, Vishal. So, Abhishek, there is a lot of expectation from media also, and that is rightly Yes, so. that is right. Yeah. Media is the fourth pillar of democracy. Yes. And, when there are things which I may hesitate to say at an individual level. So those things I expect media to voice out. Now, I don't know how much media voices out, what are the concerns of media, and how much the media has been gagged in the present circumstances. But again, just now the forum is open. आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे, तो Abhishek is out here. He's looking after, he's in charge of Dainik Bhaskar in Rajasthan. And he has worked in media. He was in charge of Punjab earlier. उसके पहले UP में, he was Hindustan में, he was looking after, he was in charge of UP. So he has extensive experience. And आप अगर मीडिया से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहें, जेन्युइन सवाल जिसका आप जेन्युइन आंसर एक्सपेक्ट करें, तो यू आर वेलकम, यू कैन डेफिनेटली आस्क. अगर आप कुछ भी पूछना चाहें, आई हैव ओपनड द चैट बॉक्स, आई हैव आल्सो अलाउड यू, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. तो आप में से कोई भी अगर कुछ पूछना चाहे, दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी.
आप प्लीज अपने सवाल पूछें। अभिषेक, मीडिया के ऊपर कितना प्रेशर रहता है आज की डेट में? क्या सही में ऐसा होता है कि डेथ्स या कितना कोविड के इम्पैक्ट है इसको कम करना है, ज्यादा करना है, क्या ऐसा होता है? आई डोंट नो, मतलब इट्स जस्ट अ ऑनेस्ट क्वेश्चन। Media puts pressure on others. There is no pressure on media. No, it is not like Media puts pressure on others, and that's the reason we are. You said it's the fourth state, and my question is because I believe it. I have a lot of faith in media, and that's the reason I was looking forward for some sort of help. Yeah. Some sort of help. The person is there. That so media के ऊपर pressure क्या रहता है? Media most of the time what happens in the media is taking out things of what pleases them. Everybody What feels कि pleases- उसका जॉब what अच्छा pleases है, them. बाकी सारे जॉब खराब And they है। are comfortably come out with that what pleases them, and how the government is pleased about it, and how the people, most intellectuals are not pleased with the media. That's what I read. That's what I read in newspaper. Yes, yes, I've got the newspaper around with me, and I'm talking not from my side. I'm not talking about them intellectual, but what happens that they are not at times that the news are come, whatever they come, sometimes they are not pleased themselves. Some of them are writing in the newspaper itself, in the Bhaskar also, in other places also, in Times also, in Indian Express also. So that is that they, what I if some pressure on media, they'll bring out valuable things to the public, and they should not bother because media cannot. Coming to that answer, Media cannot equal with them. That media wants the special people to work there. They cannot be like a person working in industry. Somebody is a teacher. Somebody is a public servant. Media is altogether different, highly intellectual. Let us allow everybody to ask questions. हाँ, अभिषेक, you can answer. मैंने जब नए लोग पूछे तब मैंने बोला, तब जाके पूछा, आप जो हैं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा एतराज हो रहा है। रमेश जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं। Actually, there are two things. In India, when we talk about media, we always talk about in perspective of somewhere in the like developed countries media, or Yes. समवेयर लाइक के वहां पे टेलीग्राफ इस तरह से बिहेव करता है, न्यूयॉर्क टाइम्स इस तरह से करता है. वी ऑलवेज कैरी दैट परसेप्शन ऑफ मीडिया. ओके, और वी आर टॉकिंग अबाउट द 10 years और 15 years बिफोर मीडिया. Another thing, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा कि मीडिया के ऊपर क्या प्रेशर रहता है. पहले मैं बताऊंगा मीडिया के ऊपर क्यों प्रेशर रहता है. अगर आपको लगता है कि मीडिया के ऊपर प्रेशर रहता है तो क्यों रहता है, उसका जवाब भी हमारे पास है. कि न्यूज़पेपर को जिस दिन आप रद्दी की वैल्यू के बजाय उसके कंटेंट वैल्यू के लिए पे करने लगेंगे, उस दिन से मीडिया के ऊपर प्रेशर खत्म हो जाएगा. हमारा जो हॉकर है ना, जब वो जाता है मींस पेमेंट लेने के लिए, द न्यूज़पेपर व्हिच कॉस्ट 150 रुपीस, इफ दैट बिल, सर सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल, अ मास. ओके, तो जब वो न्यूज़पेपर का बिल 150 रुपए से अगर कभी 156 या 160 रुपए हो जाता है, then at least 10 minutes of time that household spend कि ये 150 से 156 कैसे हो गया. Then he tells कि सर इस महीने में 2 दिन एक्स्ट्रा थे, या इस महीने में 2 दिन एक्स्ट्रा कवर प्राइस पे आया था पेपर, क्योंकि कुछ उसमें सप्लीमेंट था या कोई चीज एडिशनल थी. तो जब हम 5 रुपए से किसी भी दिन 6 रुपए का पेपर हो जाता है तो हमें दिक्कत होती है. ठीक है ना. तो मीडिया के ऊपर ये प्रेशर रहता है, मीडिया के ऊपर न्यूज प्रिंट का प्रेशर रहता है, मीडिया के ऊपर उसके एक्सपेंसेस का प्रेशर रहता है, मीडिया के ऊपर उसके रोजाना आने वाले खर्चों, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी सब्सिडी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट. Okay, we pay similar corporate tax of 37.6%. We pay the similar GST. We pay the similar GST on the newsprint. Everything we pay like similar industries. And when we increase, we try to increase the cover price of the newspaper because of our content. Because अगर हमारा cover price हमारा circulation revenue loss compensate कर देगा, तो definitely we don't need to look upon the government for the ad revenues, even not on the private clients. Now again come to that point. Suppose
unfortunately something happens in Vision Institute tomorrow, some ghatna, okay, and from reader's perspective it is important to publish the name of Vision Institute, but Vision is our client. Then Mr. Vishal Pandey or sir Dr. Ramesh, you will call us and say कि सर ठीक है देख लेना, ये तो होता ही रहता है ना पब्लिक डीलिंग के लोगों में, चीजों में, यार इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई घटना हो जाती है, तो प्लीज डू नॉट पब्लिश आवर नेम. At least you can publish some private college or institute or management institute, some event has happened. So this kind, now I am means liable because I am getting business from you from 2 crores of rupees in a year. So how can I ignore your voice? And if I ignore, so maybe I am a good means a presenter or good media, like you are saying कि your perception is good, आपका एकदम तटस्थ होना चाहिए, आपको हम छाप देते हैं, and then we next day we lose 2 crores of Vision Institute client in the market, and that cannot be compensated in next year. And if I say my readers here we lost 2 crores client, just we are increasing 1 rupee of cover price so that our ad circulation loss can be compensated, then nobody will come out. Everybody will start debating with that hawker why you are increasing this 2 rupees in a month or 10 rupees in a month. So sir, there are two things. First of all, definitely media पे जो आप बोल रहे हो कि इस तरह की चीजें रहती है, but bluntly we do not do this and we always educate our clients as well कि सफेद को काला नहीं बनाया जा सकता और काले को सफेद नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना. तो अगर इस तरह की कोई चीजें होती हैं, वी आर ऑल्सो कंप्लाइंट. अगर कल के दिन मीडिया में कोई अपराध होता है तो ऐसा नहीं है कि वो जेल नहीं जाता है या उसके आदमियों के ऊपर कोई एलिगेशन या मुकदमा नहीं चलता है, सब कुछ. वी आर जस्ट लाइक द सेम पीपल. Yes, definitely we have to clear cut picturize or we can discriminate the people जिनसे कि समाज को लाभ है या समाज को हानि है. अब आते हैं गवर्नमेंट के ऊपर. अगर आप दैनिक भास्कर की बात करें, आप इधर पिछले सीरीज की बात करें, तो मैं आपको दैनिक भास्कर के बारे में बता सकता हूं कि जो वे ऑफ जर्नलिज्म का चल रहा है, वी हैव पब्लिश्ड द चीफ मिनिस्टर्स नंबर इन गुजरात ऑन द, मैंने विशाल को उसका कटिंग भी भेजा था कि उन्होंने बोला है कि रेमडेसिविर जो है, मुझे नहीं पता सरकार को पता होगा, तो जो सीआर है उसका नंबर, बिकॉज ही वॉज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, तो हमने उनका नंबर ही अखबार में छाप दिया. अगर आपने देखा होगा एनडीटीवी में, तो अभी जो यूपी का ये इस पे रिपोर्ट आई है वो दैनिक भास्कर ने ही कैरी की है, जो गंगा के किनारे आपके 2000 से ज्यादा लाशें आई हैं और उसको छुपाया जा रहा था, या आंकड़ों में जो डिस्क्रिपेंसी है, ये सारी चीजें, ये सारी कुछ चीजें की जा रही हैं. तो वी आर नॉट इन सच प्रेशर. मीडिया का काम भी मैं मानता हूं बिल्कुल विपक्ष की तरह है, वो सरकार के साथ नहीं हो सकती, लेकिन हर आदमी जिसको पता है कि आपकी कोई कमजोरी है या आप इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकते हो, तो कोशिश जरूर करता है. जैसे मैंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकल 2 एग्जांपल दिए, एंड यू विल बी एग्रीइंग ऑन दिस कि इट हैपेंस एंड ये प्रेशर होता है मीडिया के ऊपर, और कोई प्रेशर नहीं होता है. कभी संबंधों का प्रेशर होता है, कभी रेवेन्यूज का प्रेशर होता है, कभी किसी चीज का होता है कि जिसके ऊपर आप आर्म ट्विस्टिंग कर दोगे, वो कहीं ना कहीं आपको अपने जब बारी आएगी तो उसमें दिखाने की कोशिश करेगा. तो इसके लिए हमें बहुत ही स्ट्रेंथ होना चाहिए, मींस हमारे जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है दैट शुड बी मच गुड, सो दैट कि हम इन सब तरह के छोटे मोटे प्रेशर में नहीं आए और हम सच्चाई से जिस चीज को जहां पे हाईलाइट करना है उसको करते रहें. अभिषेक, चैट में देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो टीआरपी पे उठा रहे हैं सवाल. Some of people are working की मीडिया टीआरपी से बहुत टीआरपी की फॉल्स इंफॉर्मेशन उठाती है, देती है और टीआरपी को एग्जैजरेट करते हैं. चैट में यू कैन आल्सो रीड चैट में जो क्वेश्चंस आए हैं. So TRP is basically not for print media. This is मतलब TRP जो वर्ड है, so that is basically for electronic media you are talking about. And if I talk about the electronic media, तो आप सब भी ये मानते हैं और ये कई सारे रिसर्च और एनालिसिस में भी ये चीज प्रूव हो चुकी है कि प्रिंट मीडिया इज द मोस्ट ऑथेंटिक, स्टिल द मोस्ट ऑथेंटिक मीडियम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड अदर थिंग्स. तो टीआरपी का जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल होता है. मैंने आपको बताया जहां कहीं भी ओवर कंपटीशन जब हो जाता है, अब आप अगर देखेंगे तो टाटा स्काई पे आपको मोर देन 250 चैनल्स, न्यूज चैनल्स मिल जाएंगे. कहां से आ रहे हैं ये, कौन जानता है? हु इज द ओनर, क्या एक्सपर्टीज है इनके पास, चीजों को प्रेजेंट करने की कौन से जर्नलिस्ट हैं इनके पास? तो अगर आप देखेंगे तो ये जिसने भी इसको बिजनेस के हिसाब से समझा, जैसे कई लोगों का परसेप्शन होता है कि दिस इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस मीडिया, और इसमें एक बार आ गए तो बिल्कुल आपका हर जगह पावर चलेगा और आप किसी भी चीज को करोगे तो बिल्कुल
आसानी से स्मूथली होगी, जैसे सबका एक कॉमन परसेप्शन होता है, तो उसमें मशरूमिंग हो गई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल आ गए जिनका कोई अता पता नहीं है कि इनके पीछे कौन है, उन लोगों को कोई तजुर्बा नहीं है, सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट करके आ गए। अब उनके पास क्या है, न्यूज बनाई तो नहीं जाती ना, न्यूज तो होती है, तो जब आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वो इसी तरह के स्कैम्स के रूप में सामने आती है, फॉल्स इंफॉर्मेशन के रूप में सामने आती है, जिन चीजों को तूल नहीं देना चाहिए उनको सेंसेशनल बना के उसको प्रेजेंट करने के रूप में सामने आती है। तो वो जो आप बात कर रहे हो टीआरपी का, यस इट इज हैपनिंग एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर फॉर एनी कंट्री कि जहां पे बिना किसी इन्वेस्टिगेशन या बिना किसी अच्छी लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत या स्क्रीनिंग के बाद लोगों को देना चाहिए इस तरह के लाइसेंस, बट ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर कंप्लायंस और स्टैच्यूटरी रेगुलेशंस की जरूरत है, तभी ये चीजें रुक सकती हैं। Any other question? अच्छा, मीडिया में अभिषेक, देयर इज वन साइड क्वेश्चन व्हिच आई हैव, टेक्नोलॉजी का कितना यूज हो रहा है? बिकॉज हम लोग तो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट टेक्नोलॉजी, तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन्स हैं या डेटा साइंस की एनालिसिस है, इन सब का कहीं पे यूज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तो आप लोग यूज कर रहे होगे, जो आपके लॉजिस्टिक्स होंगे, सामान इधर से उधर जाना, उसका ट्रैकिंग हो रही होगी, तो टेक्नोलॉजी का कितना यूज हो रहा है? देखिए टेक्नोलॉजी का मीडिया में देखिए 3 डिपार्टमेंट में आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। एक हो गया आपका एडिटोरियल जो मेन डिपार्टमेंट है, दूसरा हो गया आपका प्रोडक्शन, ठीक है, तीसरा हो गया आपका सेल्स या मार्केटिंग जिसको आप बोल सकते हो, एंड चौथा 4 समझ लीजिए सर्कुलेशन। तो हम एक एक डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यस वी आर यूजिंग द लेटेस्ट अपग्रेडेड मशीन्स इन दैट, एंड नाउ वी आर हैविंग फैसिलिटी। तो डायरेक्ट जो हम पीडीएफ से सीधे अखबार प्रिंट करते हैं, पहले प्लेट का सिस्टम होता है, नाउ वी हैव मींस परचेज्ड सम ऑफ द मशीन्स इन जयपुर वेयर directly we are printing the newspaper through PDF file, just like in your computer printer. Earlier what was the process कि आपका PDF से फिर CTP में जाता था, प्लेट्स बनती हैं, प्लेट्स के बाद वो बड़ी प्लेट्स लगती हैं, उसके बाद मशीन पे चलती हैं, पूरा रोल चलता है, देन पेपर प्रिंट होता है। तो नाउ दैट हैज कम। सेकेंडली अगर आप बात करते हैं एडिटोरियल की, तो एडिटोरियल में लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ AI इज हैपनिंग, स्पेशली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिकॉज डीबी आपने अगर देखा होगा, डीबी का भी अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हर अच्छे प्रिंट मीडिया हाउस का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आप ऐप पे देखेंगे तो ऑन ऐप यूजिंग ऑल दोस टेक्निक्स ऑफ AI न्यू अपग्रेडेशन, एंड एज वेल एज वी आर इम्प्लीमेंटिंग दोस टेक्निक्स टू आवर दिस एडिटोरियल कंटेंट, और जहां से भी हमें जुटाना है कंटेंट उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर्कुलेशन में भी सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ, means in next year's time our vendors will be equipped with the all the automation processes, and in media means marketing also, our sales force they are equipped with the latest upgradation and software where they are having all the details of the clients and their past history, their buying pattern, their market share, each and everything, and even the designs. Okay, like somebody is coming to you Vishal and he is showing कि आपको ना इस occasion पे एक ad देना चाहिए, then he can show you on the screen कि similar kind of universities they have published in last 6 months these kind of ads, these are the creative, this is the good selling point in their creative, okay, and what you have published last 1 year, these were the design you used and these are the design which others are using. So we are all using all the technologies because is not also means increasing our revenue, but also the turnaround time. This is a very effective use of time management through all the sales automation. Yes, Vishal. आपका पूरा डिजिटलाइज्ड है, मतलब एवरी ऑफ योर न्यूज़पेपर कितने टाइम, कितने ईयर से डिजिटल है रिकॉर्ड आपका? Last 1 year. अच्छा, Yeah. ओके। एनीथिंग एल्स लाइक आप लोग बाकी लोग generate TRP that I answered. Why Indian media have not transparency as they have right to speech, that I already answered. So I would request all the young generation, those who are there, कि स्टार्ट में अगर ये पूछूं कि कितने लोग आप में से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हाथ में लेके, कितने देर तक पढ़ते हैं, तो देखिए ये अच्छी बात है कि दूसरों को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, लेकिन आप उसके अगर आप उसके माउथ नहीं है तो आप उसकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिला सकते। आप खुद अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा या न्यूज़पेपर में छापने वाला आदमी उसकी ये जिम्मेदारी है, तो ये गलत है। पहले आप रीडर बनिए,
मेरा आप सबसे कहना है, यंग जनरेशन में जो अब जनरेशन आ रही है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि दे डोंट रीड न्यूज़पेपर, बिकॉज उनको लगता है कि ये जो है ना न्यूज़पेपर तो डिटेलिंग की चीज है, मुझे अगर ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। इसीलिए देखिए आपने जो बात की ना टीआरपी में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका वो शॉर्ट टर्म अप्रोच, यंगस्टर्स का वो शॉर्ट टर्म अप्रोच, आप डिटेलिंग में नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ घटना की लाइनें पढ़ना चाहते हो। तो जब सिर्फ लाइन होती है तो बिटवीन द लाइंस जो भी होता है ना वो हमेशा गड़बड़ किया जा सकता है। तो अगर आप बिटवीन द लाइंस जब तक और डिटेलिंग में नहीं जाओगे या नहीं पढ़ोगे तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी। उनको उस पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनको एक घटना को सेंसेशनल बना के एक लाइन की पब्लिश ब्रेकिंग न्यूज में चलाने में रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, हमारा न्यूज़पेपर इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल, हमने सपोज डॉक्टर रमेश से एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपवाया अपने एडिटोरियल कंटेंट पे, बट आप पढ़ते ही नहीं हो उसको, तो कैसे चेंज आएगा? आप तो वो ब्रेकिंग न्यूज देखने के आदी हो ना, आप तो पढ़ ही नहीं रहे हो डॉक्टर रमेश को, तो वो चेंज कैसे आएगा? उनके सारा इतना सारा ज्ञान आप तक कैसे पहुंचेगा? अब तक तो वो ब्रेकिंग न्यूज पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं हम दूसरों को जिम्मेदार तो ठहरा सकते हैं, लेकिन पहले हम ये देखें कि हम उसमें कितने थोड़े जिम्मेदार हैं। हमारा एटलीस्ट पढ़ना न्यूज़पेपर और उसको समझना और दूसरों को प्रेरित करना ये जरूरी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहा हूँ। दैनिक भास्कर नहीं आता है यूपी में, तो मैं आपसे कहूँ भी तो आप नहीं मंगा सकते, ठीक है ना? तो ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे न्यूज़पेपर के लिए बोल रहा हूँ जितने भी ऑथेंटिक हैं। और अभी तक भगवान की दया से एटलीस्ट न्यूज़पेपर ऐसे हैं कि जो अभी तक ट्रस्ट थोड़ा मेंटेन किया, हिला जरूर है उनका भी, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो 100 टाइम्स बेटर एंड सोशल मीडिया से तो 10,000 और 1 लाख टाइम्स बेटर। लेकिन अभिषेक, इट्स मोर ऑफ अ बास्केट। कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो बहुत ऑथेंटिक हैं, न्यूज़ को बहुत अच्छा देते हैं, एंड दे ट्राई टू जस्ट इन्वोक कि आपको चीजें दिखाने के लिए। देयर आर मेनी लीडिंग न्यूज़पेपर्स स्पेशली हिंदी के जो जिनका न्यूज कंटेंट टीआरपी वाला ही होता है। अब यू कांट परहैप्स, आप मीडिया से हो, आप यूपी में भी बहुत वर्क कर चुके हो, लेकिन यूपी में स्पेशली लाइक हिंदी के तमाम सारे न्यूज़पेपर हैं जो सेंसेशनल न्यूज ही देते हैं। मतलब वो न्यूज के डेप्थ नहीं होती है, विथ नहीं होती है, वो बस सेंसेशनल न्यूज होती है। I know for which paper you are talking about. Okay, so Vishal, there is always an ideology behind every newspaper. So if you go back to their promoters, definitely you will find कि किसका प्रमोटर कौन है और उसका डीएनए अखबार का उसी तरह से चलता है। तो definitely there are newspaper, they believe in crime news, they believe in sensational news. उनको लगता है कि उनका पेपर इसीलिए पढ़ा जाता है या इसीलिए पढ़ा जाएगा, ठीक है ना? तो वो उसी तरह के जर्नलिज्म में चल रहे हैं। और जैसा मैंने बोला ना कि जब तक रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक से, उनको भी अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है तब तक ये चीज चलती रहेगी। तो हो सकता है आप और मैं इसको नहीं पसंद कर रहे हूँ, बट देयर आर पीपल हु आर लाइकिंग दिस, दैट इज व्हाई दे आर कंटिन्यूइंग। तो इस समाज में हर तरह की चीजें, मुझे लगता है कि आपके पास 16 पेज का पेपर है या 18 पेज का पेपर है, तो डेफिनेटली यू कैन चूज इजीली कि आपको उनमें से कौन से 4 पेज पढ़ने चाहिए या कौन से 4 पेज या 6 पेज आपको देखने चाहिए। तो वो आप किसी भी न्यूज़पेपर में चूज कर सकते हो। बाकी आइडियोलॉजी की बात है, ये डीएनए की बात है। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दोज न्यूज़पेपर और प्रमोटर्स कि किस तरह की चीजें उनके एडिटोरियल में डाउनलोड की जाती हैं या वो करवाना चाहते हैं या करते हैं। ओके, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरीज, बट यस इट इज हैपनिंग। So always there is a good people, there are bad people, there are mediocre people, and there are people who don't care. तो ये सभी समाज में उसी तरह से यहाँ पे भी है। Acha, how many engineers are there in like how many engineers have you come across in editorial maybe or any other division? In editorial means in on-roll jobs, they are not no engineer I came across, but yes, through expert or specialist where we invite the articles and all. So there are at least 10-15 people. Chaliye, that's great. We anything else anybody would like to ask? Somebody have asked how can India become a developed country? So this is a very actually a big question. we are हम लोग 5 साल में डेवलप्ड हो जाएंगे, हमारे देश के बड़े बड़े लोग बता रहे हैं। और बारिश होती है तो बिजली चली जाती है, 2 घंटे तक नहीं आती है। हम लोग के यहाँ कहा जाता है थाली बजाओ और कोविड चला जाएगा, और उस पर लोग मान लेते हैं। हम बजाते भी हैं। हम लोग डेवलप कैसे बनेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी मिनिस्टर्स जो है वो विशाल मोदी इज डूइंग दैट आत्मनिर्भर भारत।
तो आप डेवलप तो ही रही है कंट्री, developed country आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हो रहा है तो डेवलप हो रही है। हाँ नहीं, भारत डेवलप कंट्री बनेगा, इससे आपका क्या बन फायदा रहा होगा? है, आत्मनिर्भर हो रहा है तो बनेगा। इससे हमारा क्या फायदा होगा? हाँ, मैं पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहां पे अगर अमेरिका जो है जापान के ऊपर कब्जा कर ले या चाइना के ऊपर कब्जा कर ले, तो इससे आपका क्या फायदा है? मतलब हमें इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है। इंडिया डेवलप्ड कंट्री बना रहा है या डेवलपिंग कंट्री बना रहा है? अगर आप डेवलप्ड हैं, इससे आपका ज्यादा फर्क पड़ता है कि इंडिया बन जाएगा। इंडिया क्या है, मतलब बन भी जाए डेवलप्ड कंट्री, वो किसी रैंकिंग में दिखाए, क्रिसिल की रेटिंग में आ जाए, स्टैंडर्ड एंड पुअर उसको 5 की रेटिंग दे देंगे, इससे आपका क्या फायदा? I will तो tell you, Abhishek, I'll tell you. See, हाई इम्पैक्ट फॉर यू। I'll tell you. See, I was driving in Europe once, और वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया, और जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कार देख के लग रहा था कि बहुत ही एवरेज कार थी, और उसको बचाने के लिए विद इन मैटर ऑफ हाफ एन आवर हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस आ गई। एंड आई कैन टेल यू कि वो जो आदमी था उसको देख के मेरे सामने ही हुआ था, मतलब मैं उसका हिस्सा नहीं था, मैंने नहीं करा था एक्सीडेंट, लेकिन एक एक लाइफ की बड़ी कीमत है। शायद हम डेवलप्ड हो जाएंगे तो हमारे यहाँ भी हर जीवन की कीमत होगी। अभी हमारे यहाँ जीवन की कीमत नहीं है, आप कहीं भी जाके खड़े हो जाएं, घंटों घंटों खड़े रहे, कोई कीमत नहीं है। सो दैट इज, लेकिन अगेन इट इज अ पर्सनल व्यू, इट इज परहैप्स नॉट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने वाला व्यू, लेकिन डेवलप्ड का मतलब है कि जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल भी है तो उसकी वैल्यू हो, और वो वैल्यू वो कौन है इससे ना हो, वो क्या करता है इससे भी ना हो, बस वो है इसलिए उसकी वैल्यू हो। ये शायद किसी भी डेवलप्ड कंट्री का मापदंड होना चाहिए। आई डोंट नो, you had asked me this question so I'm answering. नहीं, मुझे यस बिल्कुल, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2-3 चीजें हैं लाइक हेल्थ केयर, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो अमीर गरीब के बीच में, किसी के भी बीच में। इस तरह की सर्विसेज के लिए उसकी बीमारी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो, और वो जो भी इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल और अप टू फ्री, ये सारी चीजें। एक एजुकेशन सिस्टम है, इसके में किसी का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए इजीली अवेलेबल टैलेंट जो हो उसको स्कॉलरशिप और फ्री ऑफ कॉस्ट आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ये दो तो मुझे सेक्टर ऐसे दिखते हैं जिसमें कि डेवलप्ड हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि इन दो चीजों में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सभी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कि इन सुविधाओं का लाभ उठा पाए, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं किसी भी नेशन की बिल्डिंग में। तो जो विशाल आप बात कर रहे हो कि जान की कीमत नहीं है, इसीलिए नहीं है कि हमने इतनी जानें पैदा कर दी हैं पूरे हिंदुस्तान में कि अब हम शायद हम ही को वो बोझ लगने लगे। तो डेफिनेटली मतलब ये बहुत सारे डिबेटेबल इश्यूज हैं, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आ सकते हैं, लेकिन मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि उस पर टैगिंग क्या है, आपका डेवलपमेंट कितना है, आपको उससे क्या इम्पैक्ट मिल रहा है, आपका उससे क्या फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे आप सेल्फ सेंट्रिक बनिए, मतलब सेल्फ सेंट्रिक इन द सेंस फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ग्लोबल ज्ञान लेके हम क्या करेंगे कि बन भी जाए या ना भी बने तो हमें क्या फर्क पड़ रहा। क्रूड ऑयल की कीमत कम हो रही है, गिर रही है, डॉलर में आ रही है, $35 बैरल हो गया, कितना हो गया, इससे हमें तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारा पेट्रोल 2 रुपए लीटर बढ़ नहीं जाता। ठीक है ना? तो वही चीज है कि हम उसको देखें कि कहाँ पे हमारा फर्क पड़ता है और कहाँ नहीं पड़ता। अदरवाइज में क्यों वेस्ट करना टाइम, जब बनना होगा बन जाएगा। हम अगर सही होंगे, हम एक अच्छे सिविलियन होंगे, सिविक सेंस फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली हम कंट्रीब्यूट तो करेंगे ना उस डेवलप्ड कंट्री में। जैसे एक उसका बड़ा ट्रेट है ना हर डेवलप्ड कंट्री का, कि वहां पे सिविक सेंस आपको हाईएस्ट डिग्री पे मिलेगा। तो हम अपना सिविक सेंस ही सुधार लें अपने लिए। तो हम अगर हाईएस्ट डिग्री पे सिविक सेंस को सुधार लें, हम सोच सकते हैं यार कि आई एम इन डेवलप्ड कंट्री। Yeah, you're right. Anything else? If anybody else would like to ask a thing, we have had very open, very candid discussion. हम लोगों ने एकदम ही बहुत अच्छे से डिस्कशन। I am answering how ranking of newspaper decided, because every newspaper nowadays say it's number one. Okay, so this is a very relevant question, so I'm just giving you in 2 minutes. So there are two parameters. One is ABC and another is IRS. So ABC is basically that is an independent body, Audit Bureau of Circulation, that gives the circulation number of any newspaper. How many copies are distributed in particular area or state or city. And there is another ranking, that is Indian Readership Survey. So IRS, that is basically readership survey. That is further divided into so many parameters: classification of cities, classification of education, एज ग्रुप्स, बहुत सारी चीजें, परचेसिंग पावर। तो उससे ये डिफाइन होता है कि कितने लोग आपका न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किस सेगमेंट के लोग हैं वो और कहाँ कहाँ।
तो हमेशा जो रेलेवेंट होता है वो IRS ज्यादा होता है। देखिए कॉपी कितनी आपकी सर्कुलेट होती हैं, तो हो सकता है वो पूरी रीडर्स तक पहुंचती हैं, नहीं पहुंचती हैं, कुछ रद्दी होती हैं, बट IRS इज ऑलवेज रेलेवेंट, क्योंकि IRS में हमें ये पता चलता है कि हमारा न्यूज़पेपर किन लोगों द्वारा पढ़ा जा रहा है। ओके, तो IRS में भी कई सारे पैरामीटर होते हैं, कभी फिर आपको मैं बताऊंगा, बट basically there are two rating system. One is ABC, which is for circulation numbers, and another is IRS, which is for readership numbers. Okay, Vishal. Okay, Anything else? Abhishek. Huh. Anything else? Chalo, we took a lot of your time, and thank you. You came down and answered many things. I'm sure कि मीडिया से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें होंगी, so we also wish you कि आप भी अपने काम में डटे रहें। आपने हम लोग को भी बताया कि हम लोग भी अपना काम ढंग से करें। We दोनों see education institute and media both are extremely important for any society. अगर कोई सवाल पूछ रहा है कि हम डेवलप्ड कब बनेंगे, तो डेवलपिंग बनने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शायद पहली सीढ़ी होती है। कोई भी कॉलेज, कोई भी दुनिया की कंट्री में अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा होगा, टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और सब समझेंगे, तो वो डेफिनेटली आगे जाने में हेल्प करेगा। एंड कोई भी सिविक सोसाइटी अगर है तो वहां पे मीडिया का बहुत अच्छा रोल है। एंड खास के अगर कहीं पे अपोजिशन वीक है तो मीडिया से वो भी जिम्मेदारी आ जाती है, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल, वी अंडरस्टैंड थिंग्स। सो थैंक यू अभिषेक फॉर स्पेयरिंग सो मच टाइम, एंड you are welcome। आप hopefully आपको कई बार बुलाया है, next time if you come down to Aligarh especially, तो it will be very good। हम लोग will sit down with director sir and we'll have long discussion over number of things। Thank you, Mr. Abhishek. Thank you. Thank you, thank you। Okay, thank you very We much. look forward to meet you sometime. Sure, pleasure of mine. Okay, bye bye। Thank you.